करने वालों को कौन रोक पाया है? जुनून की आग हो तो परों को कौन तोल पाया है? हम वही हैं जो अपने सपनों को जीते हैं। हम वही हैं जो अपने सपनों को जीते हैं, जो कल का इंतज़ार नहीं करते बल्कि हम अपना आज लिखते हैं, हम अपना आज लिखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई प्रिया and I Manisha feel deeply honored to welcome you all to one of the most empowering ceremony of our school. Any guesses what is going to be happening today? Badge ceremony? Badge ceremony for what? Badge ceremony for school captain and the house captains. How can you forget them? Okay, so it is the day for the oath ceremony of our student leaders. Please welcome them with a huge round of applause. Today is not just a function, but it is a celebration of our responsibility. जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों का अर्थ भरना बहुत ज़रूरी है. It's not about the badge they will receive today, but it is about stepping up and leading up with responsibility, to make themselves an example of how to serve, how to take everyone in consideration, and सबके लबों पर एक ही नाम होगा, हर कदम पर उनकी तारीफ. सबके लबों पर एक ही नाम होगा, हर कदम पर उनकी तारीफ होगी. हम उस दौर के सूरज हैं जिस दौर में केवल रोशनी की ज़रूरत होगी. हम उस दौर के सूरज हैं जिनको केवल रोशनी की ज़रूरत होगी. So with these words, I invite our principal ma'am, Miss Praveen Sangwan, and Ashok sir and Savita ma'am for giving us some powerful words for this oath ceremony. Please welcome them with a huge round of applause. Congratulations to the elected members once again. May I request all of you to come on the stage, please. हाउस वाले तो शोर करो कम से कम. Let me see. Good, good, good. Who is our school coordinator? Lakshika. Please give her a huge round of applause. What a speech she delivered one day. School Vice Captain Rashmi. Good. Now the time for the school captain. I don't need to mention his name. Jaideep Sangwan. Jaideep Sangwan for some word of thanks from his side. Please welcome him with your loud clap. For him you will clap, I know. Thank you everyone for supporting me. I assure you that I will fulfill all my promises as I have promised you. Thank you. CRs have been selected based on their all qualities. All-rounders they are. So please clap for them. The ritual of the school. It's a commitment.
a public promise that they will lead with compassion and patience. It's not about power, it's about purpose. And to captains, my words are that today you don't just wear a title, but you carry the trust of entire school, that you will lead with compassion and patience. Leadership will not always comfort you. It will break you, it will shake you, it will question your existence sometimes, but it will also transform you. हम कई बार टूट जाते हैं, कई बार बिखर भी जाते हैं, लेकिन आखिरकार हम सिर्फ निखर जाते हैं. So it is the time for your prestigious oath, and we, the members of the Student Council, solemnly pledge to serve our school with dedication and integrity. Uphold the values of leadership, responsibility, and teamwork. Listen to and represent the voices of our fellow students. Work tirelessly to promote positive and inclusive school environment. Strive for excellence. Conduct ourselves with honesty, respect, and kindness. We promise to be role models, mentors, and friends to our peers, and to make our school a better place for everyone. Good morning everyone. Good morning. I, Lakshika, the school coordinator of Base Model School, welcomes you all in our first meeting ever. आज बैच सेरेमनी हुई और इसी के साथ आप formally as class representative introduce हो गए हो. I would also like to remind you कि आप student council के member भी हो. First of all, I would like to take permission from our school captain to initiate the meeting and say a few words. First of all, congratulations to all the class representatives and house representatives. आप सभी ने आपका बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी भूमिका निभाई है. तो आपको आपके फर्दर रूल्स बताने के लिए मैं वाइस कैप्टन को कहना चाहूँगा. थैंक यू कैप्टन भैया. तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि एज क्लास रिप्रेजेंटेटिव आपकी पहली ड्यूटी है बी हम्बल एंड बी फ्रेंड विद योर क्लासमेट्स. तभी आप लोग ज़्यादा अच्छा लीडर वो नहीं होता जो मतलब सिर्फ खुद पे ही फोकस करता है या फिर बातों को डिक्टेट करने की कोशिश करता है. एक अच्छा लीडर वो होता है जो सबको साथ लेके चले. तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को है कॉरिडोर्स में सब बच्चे लाइन में चलें. जैसे कि गेम पीरियड से मान लो आपकी क्लास ग्राउंड में से सीधी उधर जाते वाटर टैप की साइड, तो पहले आप लोगों की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि पहले सभी बच्चे क्लास में आएंगे, उसके बाद आउट पास लेके 1 बाय 1 आप लोग बच्चों को भेजोगे. ऐसे ही अगर वो इंडोर गेम्स की साइड भी जा रहे हैं तो भी आपकी ये ड्यूटी रहनी चाहिए. और रिसेस के टाइम आपकी ड्यूटी होगी कि अगर बॉय है गर्ल है नो मैटर, आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी क्लास के सभी गर्ल्स सभी बॉयज़ रिसेस के टाइम लाइन से जाएं और लाइन से आएँ और वाटर टैप पे ऐसे खड़े होकर बातें ना करें. ठीक है. और दूसरी चीज़ बिहेवियर. कोई भी बच्चा आपकी क्लास का किसी भी टीचर को डिसरिस्पेक्ट ना करे, ये इंश्योर करना आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. और दूसरे बच्चों का मजाक भी ना बनाएं. मतलब ऐसे दोस्तों में हम हंसी मजाक करते रहते हैं, पर इतनी तो समझ आप सब में होनी चाहिए कि किस बच्चे को आपकी मजाक का बुरा लग रहा है और किसको नहीं लग रहा. तो इंश्योर करो कि आपकी क्लास में सब दोस्त बन के रहें, किसी को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो और सब दोस्त बन के रहें. Okay, so let's start the conversation. सबसे पहले if you have any query, any doubt regarding anything regarding what you have to do or not to do, you can ask our school captain and vice captain. गुड आफ्टरनून भैया. गुड आफ्टरनून भैया. भैया हमारी क्लास के बच्चे हमारी बात ही नहीं मानते, तो हम क्या करें? दीदी, सबसे पहले तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव अपने क्लास टीचर को रिपोर्ट करेगा. अगर फिर भी नहीं मानते तो क्लास टीचर एक्शंस लेंगे अकॉर्डिंगली. तो आप अपने क्लास टीचर को रिपोर्ट करें किसी भी इशू के बारे में. भैया अब दे
गुड आफ्टरनून भैया। अब जैसे कि हमेशा जैसे कोई भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनता है उस पर ब्लेमिंग्स की जाती है, उसके क्या करें हम? किस कैसी किस्म? blamings की? जैसे कि मतलब अगर डोमिनेटिंग नेचर नहीं है तो उस पर ऐसे कहा जाता है कि दीदी आप हम पे मतलब आप बेकाम में टीचर से हमारी कंप्लेन करता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आती हैं। डोमिनेटिंग नेचर से आपका क्या मतलब? जैसे कि अगर हम किसी को कुछ बोल रहे हैं तो उसको ऐसा लगता है कि हम उसको कोई स्ट्रिक्ट मैनर से बोल रहे हैं, और फिर जो हमारा बोलने का होता है वो कोई और इंटेंशन से ले जाता है और फिर वो किरण मैम तक चले जाता है। दीदी, अगर अब आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव बने ही हो तो इतनी एक तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप बच्चे आपकी शिकायत कर रहे हैं तो आप उनसे ढंग से बात करो, आराम से उन्हें समझाओ कि अगली बार से काम मत करना। टीचर के पास जाने से पहले आप बच्चे से बात करो। फंडे के बारे में पूछना चाहती हूँ। हमारा पिछले साल भी वैकेशन से पहले फंडे नहीं हो पाया, और इस बार क्या प्लान है फंडे के बारे में वैकेशन से पहले? इस बार एश्योरेंस है कि आपकी छुट्टियों से पहले आपका फंडे करवाया जाएगा, और फंडे के साथ साथ आपकी हाउस पार्टी जो भी पेंडिंग है जिस हाउस की, वो भी करवाई जाएगी। गुड आफ्टरनून भैया। जैसे कि इंडोर गेम्स होते हैं तो इंडोर गेम्स में सेक्शन वाइज होना चाहिए ना? रिपीट करना है। जैसे इंडोर गेम्स होते हैं हम वैसे गेम पीरियड तो मिलता नहीं, तो सेक्शन वाइज इंडोर गेम्स के भी तो मैच होने चाहिए। इंडोर गेम्स के लिए डायरी के अंदर स्केड्यूल बना रखा है। आप देखना कि टेबल टेनिस और चेस के लिए डायरी के अंदर स्केड्यूल है, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली होंगे ये सारे गेम्स। भैया जैसे डायरी रिकॉर्ड में तो कबड्डी मैच का भी दे रखा था मेक का, पर वो तो नहीं हुआ। भैया गर्मी ज़्यादा थी इसलिए गेम्स नहीं हुए। हम सीनियर्स के लिए भी गेम्स थे कि कबड्डी के मई के अंदर होंगे, लेकिन वेदर कंडीशंस की वजह से गेम्स नहीं हो रहे, तो ये पोस्टपोन कर दिए गए हैं कि जून के बाद किसी महीने में अगर अच्छा मौसम हो तो आपके मैच करवाएं। मॉनिटर्स तो हमारे स्कूल में पहले भी होते थे, तो ये जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव का जो नया इनिशिएटिव है इसमें क्या डिफरेंस है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव दीदी एक काउंसिल बनाई गई है ताकि सारे बच्चे एक दूसरे से मतलब बातचीत कर सकें कि हमारी क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। किसी क्लास के अंदर कोई अच्छी एक्टिविटी हुई है तो वो दूसरी क्लासेस के अंदर इम्प्लीमेंट की जा सके। मॉनिटर तो सिर्फ अपनी क्लास को देखता था, अब हम कलेक्टिवली एक ग्रुप बन के सारे स्कूल का डेकोरम इंक्रीज़ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए एक ग्रुप बना रखा है। तो आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन रहता है? अगर आपको कोई भी इशू नहीं है तो विद द परमिशन ऑफ स्कूल कैप्टन वी वुड लाइक टू एंड द मीटिंग। एंड में आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम ये मीटिंग हर महीने रखेंगे। एवरी मंथ वी विल चेक कि एज ए सीआर हमने अपनी क्लास के लिए क्या क्या किया है और कहाँ तक हमने अपने स्कूल को पहुँचाया है। यू ऑल हैव टू बी क्रिएटिव। बच्चों को डिसिप्लिन में लाने से पहले यू हैव टू बी डिसिप्लिन, एंड लेट्स सी हाउ एज ए सीआर यू डू योर ड्यूटी। थैंक यू।